Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 15 January 2021 and I am teaching you chapter number 23, and name of the chapter is The Land of India. So, student, let do little recapitulation what we have done in our previous videos. So, student, I already explained you that India is the seventh largest country in the world, and by population India is the second. Okay, by population our position is second. Now see student, after that I discuss the different physical division of our country, that is mountains, northern plains, deserts of our country, southern plateau, coastal plains and islands. So in the previous video I explained you about the northern plains. So let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, I explained you northern plains, and these northern plains lies between the Himalayas and southern plateau. Okay, so these Himalayan range, I explained this Himalayan range that there are three parallel ranges of Himalayas, that is Himadri, Middle Himalayas, Shivalik, or you can also say Outer Himalayas. Himadri, here the mountains are, average height of the mountains in this region is 6000 meter, and these mountains are very tall, and for the whole year they are covered with the snow. That is the reason here the weather is very cold. Is it clear? That is the reason student, here the weather is very cold. Always temperature is in minus degree. When the temperature is below 0 degree, we say in minus. So here the weather is very cold, and that is the reason in this region the population is very less. The population is very less, and even you will not find much वेजिटेशन इन दिस रीजन. आपको इस रीजन में ज़्यादा पेड़ पौधे भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे. उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था मिडल हिमालयस और हिमाचल जिसे बोलते हैं. दिस range of the Himalayas is famous for the hill station. Many hill stations are found in this range, and here the average height of the mountain is 4000 meter. So you will see and you will find here thick vegetation. Okay, सो यहाँ पे वेजिटेशन पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा है इस हिमालयन रेंज में भी, जो कि आपकी हिमाचल बोल सकते हो या मिडल हिमालयस बोल सकते हो. ठीक है, उसके बाद मैंने शिवालिक आपको बताया था. शिवालिक इज़ द लोएस्ट हिमालयन रेंज. शिवालिक की जब हम बात करते हैं बेटा, तो शिवालिक क्या है, लोएस्ट माउंटेन रेंज है. ठीक है, इट इज़ द लोएस्ट माउंटेन रेंज है शिवालिक, और इट इज़ मोस्ट पॉपुलर फॉर टेरेस फार्मिंग एंड शिप रेयरिंग. यहाँ क्या है, पहाड़ों को काट काट के
स्टेप वाइज लैंड्स तैयार किए गए हैं, ठीक है। और इनमें हम लोग वो लोग क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। और बहुत से फॉरेस्ट आपको इस हिमालयन रेंज में देखने के लिए मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इस रेंज में आपको देखने के लिए मिलेंगी। एनिमल्स लाइक टाइगर है, एलिफेंट है, डियर आर फाउंड हियर, एंड वेराइटी ऑफ vegetation, variety of plants you will see in this Himalayan range, that is Shivalik. After that we discuss northern plains. So northern plains, when we are talking about the northern plains student, so these northern plains lies between the Himalayas range and southern plateaus. And if you see, दे स्ट्रेच अक्रॉस, स्ट्रेच मतलब कितने फैले हुए हैं, अक्रॉस मतलब एक सिरे से दूसरा सिरा होता है, ठीक है। उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा। अक्रॉस मतलब यही होता है, ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक कितना फैला हुआ है, ठीक है। तो इट स्ट्रेच अक्रॉस 2400 किलोमीटर लेंथ वाइज, और ये वेस्ट वाइज चौड़ा कितना है, दैट इज 320 किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी वेथ है और इसकी लेंथ क्या है, दैट इज 2400 किलोमीटर। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने आप लोगों को बताया था कि दीज नॉर्दर्न प्लेन्स आर क्रिएटेड बाई 3 रिवर्स, दैट इज इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। सो इंदस इन द वेस्टर्न प्लेन्स आर फार्म्ड बाय द इंदस रिवर, ठीक है। 3 रिवर्स हैं, दैट इज इंदस, इंदस इज द रिवर, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ओके, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये 3 रिवर्स हैं। सो वेस्टर्न प्लेन्स आर फाउंड बाय द इंदस रिवर एंड इट कवर्स द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। किस स्टेट को कवर कर रहा है बेटा, पंजाब और हरियाणा को कवर कर रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट गंगा, सो गंगा इज द सेंट्रल प्लेन्स, ठीक है। सेंट्रल प्लेन्स आर फाउंड बाय रिवर गंगा and it covers the state of Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. Is it clear? Now the third river, that is Brahmaputra hai, and it form the plains of eastern, ठीक है। एक वेस्टर्न है, एक सेंटर है, और ईस्टर्न प्लेन्स आर फॉर्म बाई ब्रह्मपुत्र रिवर and it covers the state of Assam. So it means that what are the name of the states which are in northern plains? So answer is Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Assam. So these are the states which are in the northern plains, and some of the famous cities in these northern plains are Delhi, Allahabad, Varanasi. All these cities are located in northern plains, ठीक है। ये सारी सिटीज किसमें लोकेटेड हैं, आपकी नॉर्दर्न प्लेन्स में। और भी सिटीज है नॉर्दर्न प्लेन्स में, चंडीगढ़, ठीक है, और भी सिटीज हैं, लेकिन इन द बुक इट इज गिवन मेंशन ओनली 3, तो जो बुक में दिया है दैट आई हैव डिस्कस विद यू, ठीक है। और दीज आर, ये क्या है, बहुत ही फर्टाइल है, यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल है, एलुवियल सॉइल है, ठीक है। दैट इज द रीजन दिस सॉइल इज वेरी गुड फॉर द कल्टीवेशन, इसलिए ये सॉइल जो है बेटा खेती के लिए बहुत अच्छी है। आप अगर देखोगे ना, नॉर्दर्न प्लेन्स में 70% ऑफ द वीट प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ 100, अगर हम सारे इंडिया में प्रोडक्शन ऑफ वीट की बात करते हैं कि हाउ मच वीट इज प्रोड्यूस इन इंडिया,
तो आउट ऑफ दैट 70% wheat is produced in the northern plains. And when we are talking about the rice, then 50% of the rice is produced in the northern plains. That is the reason, student, we say that these northern plains are the food bowl of our country, that is India. So because see student, all these rivers are mountain rivers, Himalayans, they are coming from the mountains. Okay, so their origin is from the glaciers, and when they are coming from the mountains to the plain, then what happened, these rivers water carry lot of rock particles and silt soil. Silt soil is the soil of the mountains, and they contain lot of minerals in them. So these river deposit these minerals in the northern plains. That is the reason the northern plains are very having very fertile soil, and this fertile soil is a very good for the cultivation. ठीक है. Another important thing is that these northern plains are flat. ये नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे हैं बेटा, ये सारे के सारे नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, फ्लैट हैं. ठीक है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स फ्लैट हैं, इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे देयर इज अ गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज एंड द रेलवेज. ओके, सो दैट द फूड which is produced by the crops in this region, this can be transported to different part of the country due to very good network of roadways and railways. So now student, let's start with the desert region. Let's start with the another physical division of our country, that is desert region. Region means area. ठीक है, रीजन मतलब होता है बेटा एरिया. ठीक है, कंफ्यूज नहीं हुआ आप. अब देखिए डेजर्ट रीजन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली द स्टेट ऑफ राजस्थान, इज कवर्ड बाई सैंडीज एरिया नोन एज द थार और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. यू कैन अंडरलाइन दिस लाइन आल्सो इन योर बुक. the north northwestern ठीक है पार्ट ऑफ इंडिया especially the state of Rajasthan. Especially the state of Rajasthan is covered by sandy area known as the Thar or you can say the great Indian
द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, नाउ सी ऑल ऑफ यू, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, स्पेशली द स्टेट ऑफ राजस्थान इज कवर्ड बाई अ सैंडी एरिया नोन एज द थार। सबसे बड़े मरुस्थल जो हमारी कंट्री के हैं वो है थार मरुस्थल, और इसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, हमारी कंट्री के सबसे बड़े जो मरुस्थल है, ठीक है, हमारी कंट्री के जो सबसे बड़े डेजर्ट एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थार बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, थार बोलते हैं, और इसका अनदर नेम भी है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब जब बेटा हम लोग थार मरुस्थल या थार डेजर्ट की जब बात करते हैं, तो देखो ये डेजर्ट इट इज आल्सो इन अनदर नेबरिंग कंट्री दैट इज इन पाकिस्तान आल्सो। ठीक है, दैट इज इन पाकिस्तान आल्सो। आपने, आई होप आप सबने पिक्चर देखी होगी, हिंदी पिक्चर बजरंगी भाईजान, जिसमें सलमान खान पाकिस्तान में जाता है, और व्हाट वाज द वे, किस रास्ते से वो जाता है, डेजर्ट एरिया से होके जाता है। तो जो थार डेजर्ट है बेटा, ये थार डेजर्ट जो है इट इज इन इंडिया आल्सो, एंड इट्स सम पार्ट इज इन पाकिस्तान आल्सो। ठीक है, थार डेजर्ट का कुछ पार्ट, मैक्सिमम पार्ट थार डेजर्ट का इंडिया में है, और इसका कुछ पार्ट जो है बेटा वो पाकिस्तान में भी है। फॉर एग्जाम्पल 85%, ठीक है, 85% ऑफ द डेजर्ट, थार डेजर्ट मान लो 80, अगर ये थार डेजर्ट है तो 85% ऑफ द डेजर्ट इज इन इंडिया। 85% डेजर्ट कहाँ है बेटा, इंडिया में। ठीक, एंड 15% इज इन पाकिस्तान। 15% इज इन पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये क्लियरली समझ लो बेटा, जो थार डेजर्ट है, जो इंडिया के सबसे बड़ा जो डेजर्ट पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थार डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, थार डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, और थार डेजर्ट इज इन 2 कंट्रीज। मैक्सिमम पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट इज इन आवर कंट्री, दैट इज इंडिया। maximum part of the Thar desert is in our country, that is India, 85% part, और इसका 15% part is in the neighboring country, that is पाकिस्तान। ठीक है, इसका 15% पार्ट कहाँ है, नेबरिंग कंट्री में है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाकिस्तान बोलते हैं। सो स्टूडेंट, नाउ आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू that 85% of the Thar desert is in our country, that is India, and 15% part of the Thar desert is in the neighboring country, that is Pakistan. Okay, now see students, see when any area does not receive a rainfall for a long period of a time, ठीक है, तो वहाँ की जो सॉइल हो जाती है वो टुकड़े टुकड़े में टूटने लगती है। ठीक है, और ये क्या, सैंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। आप लोगों को पता ही है कि राजस्थान डेजर्ट एरिया क्यों बना, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी ऑफ वाटर है ड्यू टू वेरी हॉट वेदर। यहाँ पानी की बहुत कमी है, और वेदर क्या है यहाँ का, बहुत हॉट है। ठीक है, एंड ड्यू टू नो वाटर, due to hot weather, or there is a very less rainfall in this region। इस रीजन में जो रेनफॉल है बेटा वो बहुत ही लेस है।
दैट इज द रीजन मैक्सिमम टाइम द सॉइल इज वेरी ड्राई। और जब सॉइल ड्राई होगी, सूखी रहेगी, तो वो टुकड़ों में ब्रेक होने लगेगी। एंड देन मैक्सिमम आप अगर इन मरुस्थल में जाओगे तो आपको बड़े बड़े रेत के टीले ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, रेत के बड़े बड़े टीले आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट है। यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा हॉट है। ठीक है, और यहाँ जो रेनफॉल है वो बहुत ही लेस है, वेरी लेस रेनफॉल इन दिस रीजन। सो देर इज सो मैक्सिमम पार्ट इज डेजर्ट, और इसी को हम लोग कहते हैं थार डेजर्ट, और वी आल्सो से दैट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब देखो, दिस रीजन इज ड्राई एंड रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। ये ऑलरेडी अभी मैंने आप लोग को बताया, ये रीजन कैसा है, ड्राई है। ठीक है, और रेनफॉल क्या है यहाँ पे, बहुत लेस है। ओके, ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया, हार्डली एनी प्लांट्स और ट्रीज आर फाउंड इन द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में जो वेजिटेशन है, बहुत कम ही प्लांट्स हैं। ठीक है, सो यहाँ जो वेजिटेशन है वो बहुत कम है, बहुत ही कम पेड़ हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे आपके हैं किसमें, थार डेजर्ट में। और ठीक है, और दूसरी चीज मैंने यहाँ जो मैक्सिमम जो पेड़ है ना बेटा, वो वही पेड़ सरवाइव कर सकते हैं विच कैन दे नीड वेरी लेस वाटर। ऐसे ही पेड़ यहाँ सरवाइव कर सकते हैं जो कई महीने भी अगर उन लोग को पानी ना मिले तो भी वो सरवाइव कर जाए। तो और मैक्सिमम अनदर थिंग क्या है, जितने भी यहाँ पेड़ है ना बेटा, डेजर्ट एरिया में वेजिटेशन बहुत लेस है, और जो कुछ पेड़ थोड़े बहुत हैं भी, तो उनकी लीव्स बहुत स्मॉल स्मॉल हैं, और ज़्यादा तो थॉर्नी होते हैं, कांटे बहुत होते हैं इन पेड़ों में। लीव्स थॉर्नी होने का, लीव्स स्मॉल होने का रीज़न क्या है बेटा, देखो, वी नो डैट द रूट ऑफ द प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो यहाँ जो पेड़ हैं उनके रूट्स क्या होते हैं, बहुत लॉन्ग होते हैं, क्योंकि बारिश होती नहीं है, एरिया टोटली ड्राई है, तो रूट्स बड़े होंगे तभी तो वो अंडरग्राउंड वाटर वहां से ले सकेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिना पानी के पेड़ हैं, पानी तो इनको भी चाहिए। इसलिए जो डेजर्ट एरिया में जो बेटा प्लांट्स होते हैं, इनके रूट्स क्या होते हैं, बहुत डीप होते हैं, सो दे कैन टेक द अंडरग्राउंड वाटर, बिकॉज रीजन इज वेरी ड्राई टू हॉट वेदर। और यहाँ के प्लांट्स जो पेड़ होते हैं उनकी जो लीव्स होती है बहुत स्मॉल होती है साइज में। उसका रीज़न भी ये है क्योंकि ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है इन विच द प्लांट लॉस द वाटर फ्रॉम द लीव्स। ठीक है, और ये वाटर ऑलरेडी इन ये ऐसे एरिया में ये ट्रीज हैं जहाँ ऑलरेडी पानी की बहुत कमी है। अगर इन पेड़ों के पत्ते बड़े होंगे तो ट्रांसपिरेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें ट्रीज क्या है, वाटर लॉस करती है। ठीक है, ट्री लॉस द वाटर थ्रू द लीव्स। आपने सुना होगा कि टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स में जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। सो फ्रॉम दिस स्टोमेटा ओपनिंग्स द वाटर इज लॉस बाय द प्लांट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। और जैसा कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया ही है कि प्लांट्स हेल्प टू ब्रिंग द रेन, क्योंकि जब प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन, बहुत ज़्यादा पेड़ हैं उनमें जब ट्रांसपिरेशन होगा तो आप लोगों को वाटर साइकिल पूरी पता ही है, वाटर इवापोरेट होके ऊपर जाता है, फिर उसके बाद जब उसका वेट बहुत लेस हो जाता है इट स्टार्ट मूविंग अप, एंड आफ्टर दैट व्हेन दैट वाटर कम इन द टच विद अ कूल एयर देन इट कंडेंस। ठीक है, और कंडेंस होने के बाद वाटर फिर वेपर फॉर्म में जो चेंज था, वेपर से फिर वो लिक्विड फॉर्म में आने लगता है। तो यही स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर आपस में जुड़ जाते हैं एंड दे मेक द क्लाउड्स, और ये क्लाउड्स बनाते हैं। और क्लाउड से व्हेन दीज रेन ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम वेरी हेवियर, सो देन दीज रेन comes from the clouds in the form of a rain again to the ground। और यही एक वाटर साइकिल है जो कि कंटिन्यूस है। तो बेटा डेजर्ट रीजन में प्लांट्स है ही नहीं, प्लांट बहुत लेस हैं। ये रीजन भी है
कि वहाँ पे रेनफॉल क्या होती है, बहुत लेस होती है डेजर्ट एरिया में, बिकॉज ट्रीज आर वेरी लेस। ठीक है, ये भी एक रीजन है जो मैंने अभी आप लोग को बताया। एंड दिस रीजन अब बोल रहा है हार्डली एनी प्लांट्स और ट्रीज आर फाउंड इन द थार डेजर्ट। ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, क्योंकि बहुत से पेड़ यहाँ वही पेड़ सरवाइव कर सकते हैं जो बिना वाटर के भी कई दिन तक मतलब सरवाइव कर ले, उन्हें ज़्यादा वाटर की जरूरत ना हो, ऐसे ही पेड़ डेजर्ट एरिया में सरवाइव कर सकते हैं। और स्पेशली इन पेड़ों की जो रूट्स होती हैं, द रूट्स ऑफ दिस ट्रीज आर वेरी डीप। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है समर्स आर वेरी हॉट एंड इन विंटर द नाइट्स आर बिटरली कोल्ड। ठीक है, देखो समर्स बहुत हॉट गर्मी होती है, लेकिन जो विंटर में होता है ना, विंटर में एकदम शरीर को कांपने लगता है, शरीर इतनी ज़्यादा ठंड होती है इन डेजर्ट एरिया में, इन मरुस्थल्स में। क्योंकि आप लोग को देखो सैंड जो होता है इसकी एक क्वालिटी होती है, ये बहुत जल्दी हीट हो जाता है। और ये बात समझ में, ये बहुत जल्दी बेटा हीट हो जाता है जब सनलाइट होती है इन द मॉर्निंग टाइम, एंड एट द सेम टाइम व्हेन देयर इज नो सनलाइट तो ये बहुत तेज कूल भी हो जाता है। जैसे मैंने आप लोग को एक चैप्टर था जिसमें लैंड ब्रिज और सी ब्रिज बताई थी। ठीक है, कि लैंड क्या है, वाटर से बहुत जल्दी हीट हो जाता है, तो जब वो जल्दी हीट होगा तो कूल भी जल्दी होगा। इन द सेम मैनर सैंड भी क्या है, एट द मॉर्निंग टाइम सैंड क्या है, ड्यू टू द सनलाइट ये बहुत जल्दी हीट हो जाता है। बट व्हेन देयर इज नो सनलाइट तो ये बिल्कुल से सैंड जो है ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। ठीक है, इसलिए बेटा विंटर में तो बहुत हॉट क्लाइमेट होता है, बट एट द टाइम, अरे सॉरी, समर में क्लाइमेट इज वेरी हॉट, बट एट द टाइम ऑफ द विंटर, विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इज इट क्लियर? इसीलिए बिटरली कोल्ड यूज किया है। और दिस रीजन हैज लो पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट लिविंग कंडीशन। और इस रीजन की जो पॉपुलेशन है ना बेटा, वो बहुत लेस है, बिकॉज देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ ए वाटर। लोगों को पीने तक का पानी नहीं है। आप ओल्ड टाइम की बात करो, बहुत पास्ट में तो वुमेन्स लोग अपने घर से 5-10 किलोमीटर्स दूर जाती थी टू फॉर द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर्स के लिए, जहाँ इतनी ज़्यादा पानी की कमी है कि पीने के लिए भी पानी नहीं है। ठीक है, बट अगर आज करंट सिचुएशन की बात करो तो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज। इसीलिए देखो जो वहाँ के लोग हैं उनको बंजारास भी बोला जाता है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि ये एरिया ऐसे हैं जहाँ पानी की बहुत कमी है, तो सरवाइव करने के लिए पानी तो चाहिए ना, तो वहाँ के लोगों को बंजारास भी बोला जाता है। ठीक है, बिकॉज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द फूड एंड वर्क। नाउ अनदर थिंग इज, बट प्रेजेंट टाइम की अगर आप बात करो तो प्रेजेंट टाइम में देयर इज लॉट ऑफ चेंजेस कम इन द राजस्थान में बहुत सी चेंजेस आ गई हैं प्रेजेंट टाइम में। क्योंकि बेटा जब सतलुज रिवर पे, जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, वहाँ पे जब सतलुज रिवर पे भाखड़ा नंगल डैम बना, ठीक है, तो डैम किस पे बनाते हैं हम लोग, रिवर्स पे बनाते हैं। जैसे जब बहुत ज़्यादा रेन होती है तो उस वाटर को हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जैसे बेटा घर में भी पानी 24 आवर हमारे टैप में नहीं आता है, टाइम टू टाइम वाटर का, मॉर्निंग के भी कुछ आवर्स आता होगा और इवनिंग में भी कुछ आवर्स आता होगा। बट वाटर एक ऐसी चीज़ है, वी नीड ऑल द टाइम फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, हमें हमेशा वाटर की जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, अपने घरों के ऊपर टैंक रख लेते हैं और उसमें उस वाटर को स्टोर कर लेते हैं। इन द सेम मैनर इन द अर्ली टाइम peoples are totally or farmers are totally depend upon the rain water for the cultivation, but due to advancement of science and technology क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स ने डैम बनाना स्टार्ट कर दिए और इस एक्स्ट्रा वाटर को, जो रेन मानसून सीजन में इतना ज़्यादा जो वाटर होता था उसको डैम्स में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। सो वंस द अब वहाँ से कैनल गई, कैनल मीन्स नहर गई, जिस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है,
और जब से ये कैनल कहाँ से पानी ला रही है, भाखड़ा सतलुज रिवर का वाटर है, ये सतलुज रिवर पे बना है। तो इस रिवर का वाटर की सप्लाई जब से राजस्थान में होने लगी है, लॉट ऑफ चेंज कम इन द लाइफ ऑफ द पीपल इन राजस्थान आल्सो। अब वहाँ के भी कई ऐसे लैंड्स हैं, एरियाज हैं जहाँ काफ़ी कल्टीवेशन होने लगा है राजस्थान में, बिकॉज लॉट ऑफ चेंजेस कम इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द राजस्थान ड्यू टू द वाटर ऑफ द इंदिरा गांधी कैनल। ठीक है, ये भाखड़ा नंगल डैम बना है सतलुज रिवर पे। तो अब इसका वाटर जब से राजस्थान में सप्लाई होने लगा है, तो राजस्थान के पीपल्स की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आई हैं। ठीक है, एक तो राजस्थान में देखो कोई ज़्यादा वाटर बॉडीज तो है नहीं, वहाँ की एक रिवर है, स्ट्रीम अपियर ड्यूरिंग, और लूनी इज द ओनली लार्जर रिवर इन दिस रीजन। रीजन मतलब एरिया होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, लूनी रिवर है, वही इस एरिया में सबसे बड़ी रिवर है। बट वाटर इतना लेस होता है, इवन मॉनसून सीजन में भी बेटा वाटर इतना लेस होता है कि देखो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, सारी रिवर्स लास्ट में जाके उनका वाटर किस में मिक्स हो जाता है, सी में मिक्स हो जाता है। बट ड्यू टू वेरी लेस रेनफॉल इन द डेजर्ट एरिया, यहाँ जो रिवर्स हैं भी तो उनमें इतना कम वाटर है और इनका वाटर कभी भी सी वाटर में मिक्स नहीं होता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट थार डेजर्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।